live now. Thank you so much, ma'am. May we start? Just a minute, I can, yeah, now you can. Thank you so much, ma'am. Very well said by Andy Smithson. The sign of great parenting is not the child's behavior. The sign of truly great parenting is the parent's behavior. A very bright good morning to one and all present here today. On this blissful morning, it gives me immense pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of Alcon International School Pre-Primary Section for the most awaited parenting session. Developing an appropriate parenting style during the initial years of child's life is a challenging proposition for all the parents. This parenting session reflects more on effective parenting styles, which will help in guiding all the parents to maintain a proper balance of sensitivity and control. And for this, we are truly blessed to have amongst us our resource person, Dr. Salim Hirani. He is the pediatrician in Surat and has great interest in social pediatrics like adolescent health awareness programs in school. We are fortunate to have amongst us Mr. Venugopal and Mr. Ramakrishna Mistry from Ahmedabad. Thank you, sir, for joining us for the insightful session. It gives me great pleasure to welcome our guiding force, our principal, Mr. Sanjay Yadav, our source of inspiration, our assistant headmistress, Ms. Pooja Shandelia, HM Middle School, Ms. Sunita Rajiv, other dignitaries, and my dear colleagues. Last but not the least, I would like to welcome our esteemed parents who, despite of their busy schedule, has taken out time to attend the most important issue faced by them in today's fast-facing world, parenting styles. Ladies and gentlemen, we are aware of his immaculate practices, which has changed the lives of many. His actions inspires others to dream more, learn more, do more, and become more. He has the capacity to transform vision into reality. I must say that his vision to see the challenges faced in handling the most tender age group by the parents has made this parenting session a reality. We extend our heartfelt thank you to you, sir, for this mindful session. I would now like to welcome our principal, Mr. Sanjay Yadav, to kindly share his inspirational thoughts with all of us. Thank you, Tina, and a very good morning to dear parents. Uh, it's indeed a pleasure to connect with you because this is the time which tells us the significance of remaining connected with each other. And on this very special day, which is 1st of May, uh, internationally recognized as Shramik Divas, Labor Day, which we call it, uh, I dedicate this day in particular to all our frontline workers and extend a prayer, a very special prayer to Almighty to keep them inspired, to give them the strength to be the support system of the existing lifeline in this entire planet. And of course, our parents, they have been the part of the system which creates a 360-degree holistic system for the development of our children. We are indeed delighted and we are thankful. I begin my gratitude by expressing in the order of how I got connected with each one of our resource person. So first of all, my heartfelt thanks to my dear friend, philosopher and guide, Mr. Venugopal Dharmarajan, with whom I have been Thank in you. contact for a long time. And he has been a not only a personal source of inspiration for me, but to my team as well as to our wonderful children. Mr. Venugopal has spent significant amount of time in interacting with our children and mentoring and guiding them. And he has brought another set of wonderful people in our life, I should say. It was my thank is due to him because he connected me to Hasmukh Bhai Patelji, who is a source in himself, who has been working tirelessly and who has been creating an ecosystem where a significant number of like-minded people they work towards strengthening and enhancing the parenting experience for a large number of parents, not only in India, but
anywhere else also. So Hasmukh Bhai has a team of wonderful people who are supporting with him, who are working with him, and they are always available at a single call. Today, we are fortunate to have Dr. Salim Hirani, who is here to conduct this session for our parents and for us as well, because we are always hungry to learn, and it is yet another for us to see the insight and learn, and of course, include these practices in our parenting as well as our teaching style. We are also fortunate to have Mr. Ramkrishna Mistry, who has also joined us. And of course, these are the resource people with whom I will be requesting in times to come to share their ideas and support our parents, our children, and our system as well. Dear parents, I will not come much in between Dr. Hirani as well as you, but I acknowledge my entire wonderful team, beginning with Pooja Chandelier and all the wonderful teachers of pre-primary, my HMs who, in spite of having their own health challenges, they are here and they are here to extend a support to this family. So an honest confession that yes, at this moment all the systems they are stressed, but the best way to overcome the stress is in togetherness. So this was one of the reasons why we decided, why we thought that let us be together, let us hear good things, let us try and bring in. Today we are living in the age where the practices, where the thoughts and the actions will keep changing, and the change is going to be the most rapid occurring thing in our life. I know that the pace which we have seen, we have adjusted to it, but it is moving faster than our adjustment also. So there is a need for us to keep moving with our perspective, keep changing, and looking after all our children. I had in fact posted a few days back that if at all we are acknowledging the efforts of all the frontline workers and warriors and all the support system, let's not forget our children first, because children, they are not in a position to express. They are living a life which has always been so vibrant, which has always been full of energy, which has always been full of life. And at this moment, if there are certain things which are not being available, they are much more stressed levels. So the only thing what can help them sail through this is our love, is our affection, is our assurance that we are there for them come what may. So let us resolve to commit to this assurance for our children, and let us bring in such wonderful practices which can bring my, if I look at in terms of priority, the biggest thing which we are here to work for and to bring in children's life is happiness. And apart from happiness, of course, now everybody understands Charles Darwin when he said that this is going to be the world of survival of the fittest. So we have to prepare our children for that life again, and ourselves as well. So let's keep working and let's keep learning, because learning is something which is the real soul of our life. So today we are all here like good children. We are going to listen to our expert. We are going to learn a lot, and we are going to practice as much as possible in our lives. With this, I welcome once again everyone and compliment and thank you for your wonderful presence. And let's proceed with further, Tina. Thank you, sir. Absolutely correct, sir. Today we are living in the phase which will keep changing, and it is important for us to change with time and give our children a sense of importance, our love, and we have to prepare them for their best life. Thank you, sir, for enlightening our minds with your most elegant words. It is my honor to welcome our speaker of the day, Dr. Salim Hirani. He is the pediatrician in Surat. He passed MD from Government Medical College and is currently practicing private consultancy since 1998. He was the president of Surat Pediatric Association and Adolescent Health Academy. He has special interest in social pediatrics like adolescent health awareness programs in school, parenting seminars, family life education, life skill education, mental health programs, and many more. He is the core member of non-government, non-professional social movement that is Parenting for Peace. He is working for creating awareness among parents, teachers, and society for the best practices
in child nurturing under the able guidance and mentorship of IPS officer Shri Hasmukh Patel since 2014. I can proudly say that he has conducted more than 100 sessions on different subjects of parenting and adolescent health. So we are extremely fortunate to have you amongst us. So without further delay, I would like to request Dr. Salim Hirani to kindly begin with today's session. Good morning to all of you. Respected Principal Sir, Sanjay Sir, all the present dignitaries, all respected teachers, and my dear parents. It's indeed मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो पेरेंटिंग के विचार है, हमारे जो पेरेंटिंग के आइडियाज़ है, उसको शेयर करने के लिए हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। आप सब पेरेंट्स भी इतने पेंडेमिक के बहुत सीरियस और क्रिटिकल माहौल में ये सेशन ज्वाइन करके कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए हमारे साथ आए हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रियली थैंक टू संजय सर and our mentor Hasmukh Bhai and also Venugopal ji. I have met him once, I have attended one session of him also, and because of their guidance and constant inspiration to us, we are able to do something. So let us start our session. We'll start with the parenting session. Now, as you are seeing on the screen, the word parenting for peace. तो ये जो एक मोमेंट है जो हम चला रहे हैं under the mentorship and guidance of our respected IPS officer Hasmukh Bhai, we started in 2014. The concept was कि अगर हमें world peace लानी है, हमारे फैमिली में, हमारी सोसाइटी में है, हमारी स्टेट में या वर्ल्ड में अगर आपको पीस चाहिए तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड. इवन एक बार महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आपको वर्ल्ड पीस चाहिए तो स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड. सो दैट इज द कंसेप्ट वी आर अप्लाइंग. और आप सब जानते होंगे कि बच्चे बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बहुत प्रभावक्षम होते हैं. बच्चे जो अपने आसपास देखते हैं, अपने आसपास जो एक्सपीरियंस करते हैं, अपने आसपास जो सुनते हैं, उसका प्रभाव बच्चे पे लाइफ टाइम रहता है और वो डिसाइड करता है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल आउटकम, बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे का सोशल IQ आगे जाके कैसा रहेगा. इट इज डिसाइडिंग फैक्टर कि बच्चे बचपन में क्या महसूस करते हैं. तो हमारा एक ये कंसेप्ट होता है कि हम बच्चों को, हमारी जो थीम लाइन है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले की है कि गिविंग लविंग एंड जॉयफुल चाइल्डहुड फॉर अ पीसफुल सोसाइटी. तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को कैसा प्यार दिया जाए, कैसे बच्चे का खुशी भरा बचपन दिया जाए, जिस वजह से बच्चे वही चीज़ बड़े होके अपने आप में भी अडॉप्ट करें और समाज में भी वही चीज़ शेयर करें जो हम उनको बचपन में मिलती है. तो इसके ये लेके एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग है. आई वुड रिक्वेस्ट टू शेयर दैट वीडियो सॉन्ग प्लीज. Sure, sir. कि तुझे मैं लेके चल एक ऐसा. Sir, is the video audible? It's sticking in between, I think. Getting stuck. कि तुझे मैं लेके चल. Yeah, now it's audible. Now it's audible. के तले जागम भी ना आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे. चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे. चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे.
कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर ना खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। It was a wonderful video and किशोर कुमार का बहुत अच्छा एक पुराना गाना था कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ कि ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बोले। दिस इज़ अवर कंसेप्ट। हमें बच्चों को ऐसा माहौल देना है, ऐसी जगह पे ले जाना है जहाँ हमेशा प्यार ही प्यार पले, खुशियाँ ही खुशियाँ पले। और काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी ब्रीफ मैसेज भी ये वीडियो में थे। विल सी जब हम आगे डिस्कशन में एक एक मैसेज का थोड़ा हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। So let us understand what parenting is. I think you are most fortunate कि respected Sanjay sir is with you and so wonderfully he shared his ideas and this thing discussion about the parenting. So और आपको ये opportunity मिली है कि आप ये topic discuss करते हो। मुझे याद है जब हम पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग में जाते थे, हमने कभी ऐसे सेशंस अटेंड नहीं किए। काफ़ी कुछ सिखाया जाता था, लेकिन द बेसिक थिंग पेरेंटिंग क्या है वो सिखाया नहीं गया। तो इट्स यू आर रियली लकी and I congratulate to all of you. So let us understand what parenting is. I think the first slide that the host showed was regarding this only कि कई बार हम ऐसा ही सोचते हैं कि पेरेंटिंग क्या है तो बच्चे को कंट्रोल करना है, बच्चे की वर्तणूक सुधारनी है, बच्चे ठीक से बिहेव करे और बच्चे को एक अच्छे एडल्ट की तरह ट्रेन करना है, वो हमारा कंसेप्ट होता है, ये हमारी मान्यता है। लेकिन हम देखें कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट दैट। पेरेंटिंग इज अबाउट कंट्रोलिंग माई ओन बिहेवियर। हम अगर कोई बच्चे को मिसबिहेव करते दिखते हैं तो इट इज द पेरेंट्स बिहेवियर दैट इज रिफ्लेक्टिंग। बच्चा इज नथिंग बट इज अ मिरर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का बिहेवियर क्या है, पेरेंट्स कैसी पर्सनालिटी कैसी है, वो बच्चों में रिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि हमें अपना बिहेवियर कंट्रोल करना है, हमें एक एडल्ट की तरह हमें कैसा बिहेव करना है वो थोड़ा समझने का, वो थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। रिमेंबर दैट चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव एंड दे लिव व्हाट दे लर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं जस्ट आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट दी साइकोलॉजिकल बुक्स से अबाउट पेरेंटिंग। हमने कई बार देखा है, हम जब लाइव सेशन लेते हैं तो पूछते हैं कि पेरेंटिंग क्या है, तो काफ़ी जवाब हमें मिलते हैं। ये ऐसा होना चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बच्चा पढ़ाई में ठीक होना चाहिए, बच्चा वेल बिहेव्ड होना चाहिए, बच्चा डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ हमें मिलती है। लेकिन अगर आप बुक डेफिनेशन देखो तो बहुत कैटेगरिकली ये डेफिनेशन दी गई है कि पेरेंटिंग और चाइल्ड रेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वी जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट एंड वी जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट द चिल्ड्रन फॉर व्हाट, फॉर द फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। बच्चे जो बड़े होते हैं, धीरे धीरे बच्चे एज एडवांस होती है, during whole their growing process we have to promote them and support them in each and everything, because you know बच्चे जब जन्म लेते हैं तो इनमें एक innate potential होता है। बच्चे को सीखने की एबिलिटी भगवान ने देखी ही है। हम सब जो क्रिएचर्स है उसमें देखते हैं कि वो जन्म लेते तब से सब सीखने लगते हैं। हमारे बच्चे भी ऐसा ही होते हैं कि वो खुद सीखते हैं। हमें हमारा रोल खाली होना चाहिए, जो जो वो सीखते हैं, जो जो करते हैं, विथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वी हैव टू प्रमोट देम, वी हैव टू सपोर्ट देम, वी हैव टू मोटिवेट देम। दैट इज द पेरेंटिंग। होलिस्टिक बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा कोट है, इसमें ये सब कुछ समझाया गया है कि क्या है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज दैट डोंट प्रिपेयर द पाथ फॉर द चाइल्ड, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द पाथ। हमें बच्चों के लिए रास्ता नहीं बनाना है, हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है कि ये रास्ते पे कैसे चले। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे कि बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना कि वो लाइफ में कहीं पर भी कभी भी कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आता है या कोई ऐसी मुश्किल आती है, एडवर्सिटीज आती है, जैसे अभी हम भी सब लोग पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे चले, तो वो स्किल बच्चों को सिखानी है। तो वो कैसे करेंगे? आप सब जानते हो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। भले हमें उसको बहुत लाइटली लिया है, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कभी बोलते हैं कि उसमें क्या है, हमने तो 6 बच्चे को जन्म दिया है, 6 बच्चे को बड़े किए, सबको डॉक्टर्स बनाए। पेरेंटिंग में क्या होता ही रहता है, अपने आप चलता है। ऐसी बात नहीं है। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एंड द वर्स्ट पार्ट इज के वी डोंट हैव एनी सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग फॉर द पेरेंटिंग। आप देखो तो सबकी ट्रेनिंग मिलती है,
जैसे मुझे ये सीखना था कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना था, उसकी भी ट्रेनिंग थी। लेकिन कई बार सिस्टमेटिक के स्ट्रक्चरल पेरेंटिंग की ट्रेनिंग हम पेरेंट्स को कभी नहीं देते। वो बच्चे जन्मते हैं, बच्चे पेरेंट्स हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कैसे पेरेंटिंग करना, क्या करना। और वाई इट इज़ सो, जैसे हमने तारे ज़मीं के पिक्चर में भी देखा है कि इसमें हमेशा 1+1 2 नहीं होता है, सब बच्चे अलग अलग है। जैसे टीचर्स क्लास में फेस करते हैं, 60 बच्चे होते हैं, 60 की ग्रास्पिंग एबिलिटी है, उनका इंटेलेक्चुअल है, उनके पर्सनालिटीज़ है, उनका इंटरेस्ट है, तो वो सब अलग अलग होता है। टीचर को मैनेज करना पड़ता है, हर एक बच्चे अगर समझ सके वैसे किस तरह से सिखाया जाए। सेम थिंग हैपन्स फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। आज मैं मेरे बच्चे को जिस तरह से मैंने लालन पोषण किया है, मैं आपको सब देने लगूँ, एक बॉम्बार्डिंग करूँ या डाउनलोडिंग करूँ कि ऐसा करो वैसा करो, तो हो सकता है वो आपके बच्चे में वो काम नहीं आएगा, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई एवरी चाइल्ड रिक्वायर्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग। तो आज हमें ये स्किल डेवलप करना है कि हमारे बच्चे को, हमें अगर पेरेंटिंग करना है तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करना है, हम क्या अडॉप्ट करें कि जिस तरह से हम बच्चे को खुशी और प्यार भरा माहौल दें, इससे बच्चे आगे जाके एक अच्छा इंसान बन सके, जवाबदार नागरिक बन सके। So during live session many times we ask what is our goal of parenting। अगर पेरेंटिंग करते हैं, हम पेरेंटिंग को इतना एम्फेसाइज करते हैं, तो हमारा गोल, कोई भी चीज़ हम करते थे, हमारा गोल होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, इसलिए करना है। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज द गोल ऑफ पेरेंटिंग, तो तभी भी हमें जो आंसर्स मिलते हैं, आज अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट इंटरेक्ट लाइव वेरी मच, सो आई विल जस्ट गो थ्रू द आंसर्स दैट वी गॉट व्हाइल वी इंटरेक्ट लाइवली विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बच्चा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए, फेथ वाला होना चाहिए, मोरल्स, वैल्यूज, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या क्या लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं। लेकिन हमने देखा है कोई एक चीज़ हमेशा मिस करते हैं, और जो संजय सर ने भी आगे बात की, और जो हमें जो पूरा हमारा पेरेंटिंग की मूवमेंट है, पेरेंटिंग फॉर पीस, बाल घड़तर सके विश्व शांति, वो जो एक थीम पे हम काम कर रहे हैं, वो थीम ये है कि वी शुड ऑलवेज थिंक कि हाउ टू मेक चाइल्ड हैप्पी। एंड दिस ऑलवेज वी फॉरगेट, वी आर लीस्ट कंसर्न कि चाइल्ड को जो रियल सेंस में अंदरूनी खुशी मिलती है कि नहीं। वी ऑलवेज फोकस ऑन दी अदर पैरामीटर्स, जो कभी चाइल्ड को स्ट्रेसफुल करता है और चाइल्ड की साइकोलॉजी को बिगाड़ देता है। बट वी शुड फोकस हाउ टू कीप चाइल्ड हैप्पी, और हैप्पी भी इंटरनल हैप्पीनेस। इट इज नॉट कि आपने चॉकलेट्स दी, बिस्किट्स दी या गिफ्ट दिया और बच्चा खुश हो गया, नॉट दैट। should enjoy from the inner sense, and that's very important because it has been found कि जो बच्चा खुश होता है वो बच्चे को सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है। जो बच्चे का सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है वो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। जो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट बनता है आगे जाके, और जो इंडिपेंडेंट बन जाता है उसकी रेजिलियंसी बढ़ जाती है। तो वो लाइफ में कोई भी एडवर्सिटीज आएगी, ऐसे बच्चे, खुश बच्चे इसको फेस कर लेंगे। वो कभी ड्रग्स नहीं लेंगे, वो कभी घर से भाग नहीं जाएंगे, वो कभी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे, वो कभी रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, और वो कभी भी सुसाइड्स नहीं करेंगे। जो आज हम देख रहे हैं कि कितने सुसाइड यंगस्टर्स में होते हैं, तो वो भी अगर प्रिवेंट करना है तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द आवर गोल शुड बी टू फोकस ऑन कीप द चाइल्ड हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तो आज हम थोड़ी ये टिप्स देखेंगे कि बच्चे को खुश कैसे रख सकते हैं हम। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि बच्चा जब जन्म लेता है, आप जानते हो कि बच्चे का बिहेवियर या बच्चों की साइकोलॉजी ब्रॉडली दो एस्पेक्ट पे डिपेंड होती है। वन इज नेचर एंड वन इज नर्चर। नेचर मतलब जो जेनेटिक सेटअप, जो जेनेटिक सॉफ्टवेयर भगवान दे के बच्चे को भेजते हैं, या तो हार्डवेयर हम बोले, सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर, तो वो एक लिमिटेड सोर्स अपने पास रहता है। कोई फॉर्चुनेट होता है जिनके पास इंटेलेक्चुअल बहुत अच्छा होता है, कोई थोड़े अनफॉर्चुनेट या थोड़े डिफरेंटली एबल चाइल्ड होते हैं, जिसको शायद हो सकता है कि स्लो लर्नर हो, उनकी IQ थोड़ा कम हो, उसको कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसको और कोई छोटा मोटा इश्यूज, ऑर्गेनिक इश्यूज हो ब्रेन में, जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है या ठीक से ग्रास्प नहीं कर पाता है। तो दैट वी कैन ट्रेन देम, बट वी कैन नॉट डू मच ऑन दैट बिकॉज दैट इज द इननेट, दैट इज द जेनेटिक थिंग। किसी का IQ 85 है तो आप 90, 95, 100 नहीं कर पाओगे। कोई स्लो लर्नर है तो आपको अपना टीचिंग स्टाइल को मॉड्यूलेट करके उनको वो स्लो लर्नर के हिसाब से जो पढ़ाया जाता है उस हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज नेचर। कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मली है, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी है, जो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है, वी कांट डू मच ऑन दैट। वी कैन डेफिनेटली फाइंड द वे कि इसको कैसे हम मैक्सिमम पोटेंशियल इसका बाहर है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। द अदर एस्पेक्ट इज नर्चर, एंड टुडे वी विल फोकस ऑन दैट। नर्चर इज एनवायरमेंट, कि बच्चे पे जो एनवायरमेंट की इम्पैक्ट होती है, दैट डिसाइड्स कि बच्चों का साइकोलॉजिकल मेकअप, उसका इमोशनल फ्रेमवर्क कैसा होगा। इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंट वी आर प्रोवाइडिंग टू द चाइल्ड। उस पर आज हम बात करेंगे क्या है।
So let us understand this basic science of the early childhood period. You know that the early childhood period brain का maximum development, almost 90% development 5 years में हो जाता है. बाद में जो होता है वो खाली सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, काफी सारे नव कनेक्शंस बच्चों के दिमाग में होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो देखते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो उनकी पांचों इंद्रियां ग्रास्प करती है आजू बाजू से, उससे बच्चे की एक मेमोरी बिल्डअप होती है ब्रेन में, एक बिलीफ सिस्टम बिल्डअप होती है. और वो बिल्डअप होने के लिए नए नए कनेक्शंस बनते हैं साइनेप्सिस में, बिकॉज ब्रेन इज वेरी प्लास्टिक. ये जो फेज है, जैसे मैंने ये कुंभार का जो चक्रा बताया, कुंभार जब एक मिट्टी का मटका बनाता है, तो जब बनाते तो ही कैन शेप इट इन एनी वे, बिकॉज मिट्टी गीली है और मिट्टी को आप जैसा आप फ्रेम करना चाहो, जैसा शेप देना चाहो आप दे सकते हो. सेम थिंग इज विद द चिल्ड्रन. चिल्ड्रन का 7-8 साल की उम्र तक उनका ब्रेन भी ऐसा प्लास्टिक होता है, आप उसको जैसा मोल्ड करना चाहो मोल्ड कर सकते हो. दैट्स नॉट प्लास्टिसिटी. द ओनली थिंग इज कि ये जो आप सिग्नल्स ब्रेन में डालते हो, ये जो शेपिंग आप करते हो, ये जो फ्रेमिंग आप करते हो, दैट इज परमानेंट इन द चिल्ड्रन. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. जैसे एक मटका बन जाता है, सूख जाता है, फिर आप अगर उसको कुछ करना चाहो तो आपको तोड़ना ही पड़े, और कोई रास्ता नहीं है. आप मतलब बोलते मुझे गोल नहीं मटका चाहिए, मुझे तो ऐसा लंबा चाहिए, मुझे तो ज़्यादा शैलो चाहिए, ज़्यादा डीप चाहिए, आप नहीं कर पाओगे. आप करने जाओगे तो मटका टूट जाएगा. वही होता है बच्चों में कि 8-10 साल के बाद हम थोड़े अवेयरनेस क्रिएट करके हम कुछ करने जाते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं. सो दिस पीरियड इज वेरी क्रूशियल पीरियड, वेरी सेंसिटिव पीरियड. अगर आपको बच्चे को कुछ बनाना है, बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, बच्चे को रेजिलिएंट बनाना है, तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. ये एज में कुछ करो. और इसलिए हम आज बात करते हैं क्या कर सकते हैं. और बच्चे का ग्रास्पिंग पावर एक्सट्रीम होता है, ये आप समझ लो. और ये हमें इसका बेनिफिट लेना है. जो कुदरत ने जो ये दिया है, बच्चों को नियामत दी है, उसका हम बेनिफिट लेना है. और बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं सराउंडिंग में, हमको उसको सीखने देना है, हमें सपोर्ट करना है. और याद रखो ये बिलीफ सिस्टम के ईयर्स है, और ये एज में बच्चे को अच्छी बिलीफ देंगे, अच्छे विचार देंगे, तो डेफिनेटली आगे जाके बच्चे यही करेंगे. एक स्टोरी है, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो बाद में मैं करूँगा. वो स्टोरी वैसे जोक है, लेकिन वो स्टोरी में हम देखते काफ़ी कुछ पेरेंटिंग की बात होती है और समझने में हमें ईजी होती है. मुझे लगता है थोड़ा बोल ही दें तो मैं बहुत शॉर्ट में वो स्टोरी बोलूँगा कि एक चुटकुला है, तो ऐसा स्टोरी नहीं है, लेकिन उसमें पेरेंटिंग के काफ़ी मैसेज है. कि एक लेडी थी, हो सकता है 30-32 साल की लेडी होगी, उसकी 6 साल की एक लड़की थी. तो वो लेडी एक बार अपने बेडरूम में कुछ अपने आप कुछ श्रृंगार कर रही थी, कुछ तैयार हो रही थी, बाल संवार रही थी, अच्छे कपड़े पहन रही थी, शीशे में देख के अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी. बच्ची बाहर खेल रही थी, वो देख रही थी. तो थोड़ी देर के बाद बच्चे ने देखा कि माँ बहुत खुश है, माँ कहीं किटी पार्टी में कहीं की जाने वाली है, तैयार हो रही है. पर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, अचानक माँ एकदम गंभीर हो गई, एकदम सैड हो गई. और बच्चे ने ये देख लिया कि माँ का मूड लेस है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि बच्चे, हमारा मूड सबसे पहले बच्चे पहचानते हैं. बच्चे को तुरंत पता चल जाता है कि माँ बाप में कुछ गड़बड़ है आज. इवन टेलीफोनिकली भी दे कैन आइडेंटिफाई कि आज कुछ आवाज़ में गड़बड़ है, शायद पापा को कुछ स्ट्रेस है या मम्मी कुछ गड़बड़ है, मम्मी के हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है. तो इमीडिएटली बच्चा दौड़ के एज ए नेचुरल रिफ्लेक्स है और मम्मी को, मम्मी क्या हुआ. तो टिपिकल अपनी स्टाइल, तू तेरा काम कर, तू बीच में डग मत कर, तू बाहर जाके खेल, तेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं है. फिर बच्चे हैं ना बहुत क्यूरियस होते हैं, बच्चे बहुत जानने की कोशिश करते हैं. वो जब तक उनको आंसर नहीं मिल रहा है तब तक वो छोड़ते नहीं है. स्पेशली 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद वो इतने टॉकेटिव और इतने क्वेश्चंस पूछते हैं. तो बच्चा दौड़ के वापस आया. तो 2-3 बार माँ ने हटाया कि नहीं जा, ऐसा. फिर माँ को लगा कि बच्चा छोड़ेगा नहीं. तो जब तीसरी चौथी बार तब उसने माँ को पूछा कि क्या हुआ, तो माँ ने कहा, देख तेरे को सुनना है क्या हुआ, मैं आज मेरा बाल संवार रही थी, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत घने काले बाल हैं, लेकिन आज क्या हुआ, मैंने मेरे बाल में एक सफ़ेद बाल देखा. तो सफ़ेद बाल की वजह से मैं डिप्रेस हो गई, मैं स्ट्रेस्ड हो गई. ये क्या होगा, क्या मेरी उम्र इतनी बढ़ गई कि मेरे सफ़ेद बाल आ गए. बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में उसका अपना तर्क होता है, अपना लॉजिक होता है. थोड़ा बच्चे बाहर गया, सुना, फिर उसको लगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा. बच्चे को फिर एक क्यूरियोसिटी, फिर वो माँ के पास आया कि मम्मी क्यों हुए तेरे बाल सफ़ेद हुए. फिर 2-3 बार माँ ने टालने की कोशिश की, फिर वो बच्चा माना नहीं. तो माँ ने बताया कि देख बेटा, मेरे बाल बहुत ही अच्छे थे, पर जब से तेरा जन्म हुआ और तेरे पीछे मैं इतनी पागल हो गई, तो मुझे इतना परेशान करती है, सुबह उठ के रात को सोने तक मुझे खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है. और तेरे पीछे काम करते करते, तेरे पीछे तेरी सब देखभाल करते करते मेरे बाल सफ़ेद हो गए. दिस वॉज समथिंग वेरी ट्रॉमेटिक.
ये एक चुटकुला है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ भारी भारी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको आपके सामने ये बात पेश की है। फिर बच्चा बाहर गया, अगेन बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे का तर्क, बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड फेज, ब्रेन की प्लास्टिसिटी, बच्चा वापस आया कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, आपका बाल सफ़ेद क्यों हुआ, आपका बाल मैं मस्ती करता हूँ तो सफ़ेद हुआ, ऐसा क्यों होता है। तो माँ ने तो समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा समझा नहीं। फिर बच्चे ने अपने तर्क लगाया, बच्चा खुद आया, बोला मम्मी मुझे एक बात समझ में आ गई। देखो ये बच्चों की समझ में आती है। तो बोले क्या है, तो अभी मुझे समझ पड़ी कि नानी के बाल क्यों सब सफ़ेद है। तो देखो ये बच्चे का थिंकिंग, ये लेवल का थिंकिंग, ये पूरी स्टोरी में काफ़ी कुछ पेरेंटिंग की बात आती है। मैं जब जब रेफरेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा क्या बात आती है। लेकिन आफ्टर दैट सो द नेक्स्ट विल गो कि भाई बच्चे का बिहेवियर है, बच्चे का एटीट्यूड है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे रेस करो। बहुत अच्छा, ये बहुत पावरफुल पिक्चर है। माँ बोलती है, उसकी इफेक्ट बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे वही बिहेवियर समाज में करते हैं और दूसरे को रुलाते हैं। सो इट्स home is the first school and parents are the first teacher. It is what we behave that will be reflected in the children. So हम आज देखें कि हमारे पास आज क्या क्या चैलेंजेस है चाइल्ड नर्चरिंग की और चाइल्ड बात का। हम जब लाइव सेशन पूछते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ सामने आती है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं। मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी मंगवाए थे, सब क्वेश्चंस शायद इसमें आ गए। सब क्वेश्चंस इस पे ही थे कि बच्चे हमारी कुछ सुनते नहीं है, बच्चे बहुत स्टबन है, बच्चे बहुत एग्रेसिव है, बच्चे बहुत इम्पेशेंट है, बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते, बच्चे मिसबिहेव करते। दैट इज अ कॉमन, नॉट लिसनिंग एंड मिसबिहेवियर। ये दो ही चीज़ आज सब पेरेंट्स को सताती है। और पता नहीं वो मिसबिहेवियर बच्चों में है या पेरेंट्स में है, लेकिन ये गड़बड़ है कि मिसबिहेवियर से सब लोग परेशान है। और लास्ट अभी जो ऐड हुआ है, दैट इज मीडिया एडिक्शन। विल नॉट डिस्कस मच ऑन दैट बिकॉज वी कैन हैव ए सेपरेट सेशन ऑन दैट। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं थोड़ी बातें मीडिया की करूंगा, लेकिन मीडिया आज डेलिबरेटली हम अवॉइड करेंगे। थोड़ा मिसबिहेवियर का जीनेसिस समझ लेते हैं, क्यों मिसबिहेवियर होता है। तो हम सब जानते हैं कि बच्चे का एक कॉमन प्रिंसिपल है, या तो एक वास्तविकता है, रियलिटी है। आप ये समझ लो कि बच्चे अगर कुछ भी चीज़ करते हैं, फिर वो अच्छी चीज़ करे या बुरी चीज़ करे, एक बात समझ लो कि उसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न होता है। बच्चे एकदम क्लासिकल स्वार्थी होते हैं, वो कभी कुछ गेन के बिना कुछ नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ भी करेंगे तो दे विल एक्सपेक्ट कि उसको कुछ गेन मिले। उसी तरह बुरी चीज़ भी इसलिए करता है कि वो कुछ चाहते हैं, या वो चाहते हैं वो शायद उसको मिलता नहीं है। या अभी सर ने भी आगे बताया कि दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। कई बार क्या होता है, उनके इमोशनल नीड्स क्या होती है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। उनको लगता है कि मैं जाऊँ मेरी माँ मुझे हक करे, मुझे किस करे, लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि मुझे हक करो, मुझे किस करो। तो ये जब इमोशनल डेफिसिट या इमोशनल लैकिंग होता है बच्चों में, तो दे कैन एक्सप्रेस इट एज ए एब्नॉर्मल बिहेवियर। सो इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट इश्यूज जो बच्चों में होता है, इसको बोलते हैं। तो ये जो बच्चे का मिसबिहेवियर भी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। थोड़ा हम मैं 2 मिनट लूंगा थोड़ा समझने के लिए कि क्या होता है। तो एक चीज समझ लो कि देयर इज ऑलवेज ए पर्पस फॉर मिसबिहेवियर। तो अभी कभी भी मिसबिहेवियर आपका बच्चा करता है तो इमीडिएटली आस्क द क्वेश्चन टू योर माइंड कि क्यों किया इसने ऐसा। मैंने कोई चीज तोड़ दी, आपके सामने गाली बोल दी, रोने लगा, कोई किसी चीज की जीत करता है, स्टबन होता है, झूठ बोलता है, मारामारी करता है, तो आप तुरंत सोचो, इंस्टेड ऑफ तुरंत रिएक्शन देने की बजाय आप सोचो कि क्यों किया। एक करने का पीछे रीजन क्या था, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ रीजन से ही ये करते हैं। ये बहुत अच्छा स्टडी रुडोल्फ ड्रिकोस ने किया था। उसने बहुत अच्छा एक ग्राफ दिया है कि जो मिसबिहेवियर्स होते हैं उसमें सबसे कॉमन जो रीजन उसके पीछे होता है, या सबसे ज्यादा देखा गया है, मोर देन से 80% ऑफ द केसेस में जो मिसबिहेवियर उसका रीजन है कि लैक ऑफ अटेंशन। ये मैकेनिकल लाइफ में, ये अपनी बिजी लाइफ में, हम खुद अपनी लाइफ में इतना इंडल्ज हो गए, हम खुद इतने बिजी हो गए कि वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू चिल्ड्रन। हम आगे थोड़ी बात करेंगे कि क्या है वो। आपको अभी थोड़ा ऐसा लगेगा, ऐसा थोड़ा होता है, पूरे दिन बच्चा बोलता है तो हम तो दिमाग खा जाते हैं, पूरे दिन सुनते तो रहते हैं, लेकिन व्हाट इज सुनना वो भी आगे बात करेंगे। तो नॉट ओनली सुनना पर अटेंशन। हमारा यूजुअली हमारा क्या होता है, हम ऑलवेज सुबह से शाम तक बच्चों पे नेगेटिव अटेंशन देते हैं। अगर बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी, बच्चे ने कपड़े खराब कर दिए, बच्चे ने ठीक से खाना नहीं खाया, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह से हमारा फोकस वही होता है। तूने आज खाना नहीं खाया, तूने नाश्ता नहीं किया, तेरे कपड़े देख कैसा है, तू ब्रश नहीं ठीक से करता है, तेरे को ये नहीं आता है, तेरे को वो नहीं आता है, तू तो डब्बा है, तू तो लेजी है। सुबह से लेकर शाम तक हम इसमें ही बिजी रहते हैं। तो बच्चे को क्या लगता है कि उनको पॉजिटिव अटेंशन तो मिलता ही नहीं है, लेकिन नेगेटिव अटेंशन बराबर मिलता है, कभी कभी थप्पड़ भी मिलती है। तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ नेगेटिव कुछ करूँ ना तो मेरे माँ बाप मेरी तरफ देखेंगे, मेरे को अटेंटिव बनेंगे और मेरे से बात करेंगे। भले गुस्सा पे गुस्सा करेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक आएंगे, मेरे से बॉन्ड होगा।
इसलिए बच्चे ये सीख जाते हैं कि अगर माँ बाप का अटेंशन अगर लेना है तो मिसबिहेव करना है तो माँ बाप दोनों हमारे पे आ जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजी है, ये जो बिलीफ है, ये अर्ली चाइल्डहुड फेज में बच्चों में घुस जाती है, फिर बच्चा हमेशा अटेंशन सीकिंग के लिए मिसबिहेव करेगा। देयर आर अदर 11 रीजंस ऑफ मिसबिहेवियर। हम जब डिसिप्लिन की बात करेंगे, हमारे जो सीनियर है डॉक्टर कमलेश भाई बहुत अच्छा समझाते कि देयर आर 12 और 13 डिफरेंट रीजंस व्हाई द चिल्ड्रन मिसबिहेव, बट 80% ऑफ द मिसबिहेवियर इट इज बिकॉज ऑफ attention lacking. We are not attentive to our children. That is the reason. So आज से आप ये इंट्रोस्पेक्ट करो कि आप कितने अटेंटिव हो, और इज इट के सो कि आप अटेंटिव नहीं हो, बच्चे को अटेंड नहीं करते इसलिए बच्चे मिसबिहेव करते हैं। अगर वो आप ढूंढ पाओगे तो डेफिनेटली आप कुछ अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे। सो द नीड ऑफ द टाइम इज कॉन्शियस एंड माइंडफुल पेरेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल मैंने कम्युनिकेशन से दिया है कि कैसे पेरेंट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं बच्चों के साथ। सपोज कि एक जो बैगर है वो मांगता है रास्ते के बीच में, और एक माँ उसके बच्चे के साथ निकलती है, तो माँ तुरंत क्या बोलती है, देख तू पढ़ेगा नहीं ना तेरी हालत ऐसी हो जाएगी। आज भी हमने डायलॉग देखा है कि माँ बोलते हैं कि जब तू पढ़ा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, नहीं तो मजदूरी करेगा, तेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे डायलॉग्स होते हैं। सो दिस इज नॉट एट ऑल ए कॉन्शियस पेरेंटिंग। दिस विल गिव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से अपनी एज के प्रोपोर्शनेट क्या तर्क लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे। जैसे मैंने बताया कि नानी के बाल क्यों सफेद है, ये तर्क सब बच्चों में होता है, और बच्चे बहुत गलत सोच लेते हैं और फिर वो बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। इंस्टेड यू कुड हैव टेल कि इफ यू स्टडी वेल यू विल बी एबल टू बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड फॉर हिम। देखो ये गरीब है, ये इसकी मजबूरी है मानता है, लेकिन अगर तू अच्छी तरह से पढ़ेगा तो तू ऐसे आदमियों को अच्छी जिंदगी दे पाएगा। सी देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द रिस्पॉन्स। तो हमें ये भाषा सीखनी है, पॉजिटिव भाषा सीखनी है, एफर्मेटिव भाषा सीखनी है, जो बच्चे को इंटरनली मोटिवेट करे अच्छा सोचने के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छा बिहेवियर के लिए, अच्छी हैबिट्स के लिए, जो उसको आगे जाके लाइफ टाइम उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब बोलते हो मेक श्योर इट्स कनेक्टेड बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग। ब्रेन और टंग के बीच में कोऑर्डिनेशन रखो। कई बार हम इतने एक्साइटेड हो जाते, इतने एंग्री, इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा ब्रेन छोड़ देते और जीभ में से जो आता है वो बोल देते हैं। और आपका एक एक वर्ड हमने बहुत अच्छा P4P का वीडियो बनाया था, आज समय नहीं है लेकिन कभी आपसे शेयर करेंगे। उसमें बताया गया कि बच्चे कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि आपके एक एक वर्ड, लेजी, डब्बा, आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। हम जो लेबलिंग करते हैं वो लेबल बच्चे की पूरी लाइफ उनके पीछे चिपका हुआ रहता है, और वो लेबल से बच्चे की साइकोलॉजी कितनी खराब होती है और आगे जाके बच्चे को कितनी परेशानी होती है। और वो कभी कभी तो वो ब्लंट हो जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं फेलियर होता है कि तू यू आर फेलियर, तो फेलियर इसके दिमाग में ऐसे घुस जाता है, फिर वो फेलियर सेलिब्रेट करता है, कुछ नहीं होता है उसको, जाके फेल होता है, मुझे तो पता था फेल है। तो ऐसी साइकोलॉजी, ब्लंट साइकोलॉजी बच्चे की हो जाती है, एंड दैट्स द मोस्ट डैमेजिंग। उसका सेल्फ एस्टीम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे देयर आर ऑल चांसेस कि दे विल गेट डाइवर्टेड टू सम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, और हम उसको हाथ में से खो लेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू स्पीक। जब बच्चे का जन्म होता है हमारे घर में, तो हम देखते हैं कि हम कितने खुश होते हैं। अगर आप सोचो, आपके जितने सबके बच्चे हैं, कि जिस दिन आपके घर पे एक बच्चा ने जन्म लिया था तो आप कितने खुश थे, आपने कितने फोन्स किए थे, कितने पेड़े बाते थे कि भाई हमारे घर बच्चा हुआ, हमें भगवान की कृपा हो गई, हम माँ बाप बन गए, हमारी खुशी हो गई, ये हो गई। कितनी खुशी होती है, क्योंकि ये अपार खुशी है। सी, एक मदर के लिए भी बच्चे को जन्म देना इज द लाइफ टाइम गोल। उसका एक ही गोल होता है कि मातृत्व प्राप्त करे और बच्चे को जन्म दे। जब तक वो नहीं होता है तब तक वो परेशान हो जाते हैं। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी हैप्पी मोमेंट कि हमारे घर में बच्चे होते हैं। लेकिन हमने देखा है आफ्टर 3 years 4 years पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में हो जाते हैं, हम गजनी बन जाते हैं। माँ भी डांटती है, देख शाम को तेरे बाप को आने दे, देख तेरे को क्या गलती, तेरी हालत क्या बनाती हूँ, देख तेरे को आज क्या सजा मिलती है। और कई बार मैंने देखा है कि माँ बाप के सामने बच्चे को पेशाब भी हो जाता है, इतने स्ट्रिक्ट माँ बाप हो जाते हैं। जो बच्चे उनकी दुनिया भर का प्यार था, दुनिया भर की खुशी थी, फिर क्या हो जाता है। जैसे वो बाल वाले हम बुलाते, पूरा ब्लेम, उसकी बाल सफ़ेद हुए उसका ब्लेम, वो नेचुरल था, वो एज ए पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस था, तो उसने पूरा ब्लेम, पूरा जो घड़ा है ब्लेम का वो बच्चे पे डाल दिया। इट्स बिकॉज ऑफ यू कि मेरा बाल सफ़ेद हो गया। आपको मालूम नहीं है कि जब बच्चे ये फेस करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या असर होती है। आज अगर कुछ सेशन में कुछ डेफिसिट आती है, कुछ प्रॉब्लम होता है और आप मेरे पे ब्लेम डाल दो कि सर ये आपकी वजह से हुआ, तो आप सोचो मेरे पे क्या होगा। 2 दिन मैं क्या सोचूंगा, मेरे को नींद भी नहीं आएगी कि ऐसा कैसा हुआ, मैंने क्या कर दिया कि पूरा सेशन बिगड़ गया। तो बच्चों में भी वही होता है। अगर बच्चे को आप ब्लेम करते हो कोई चीज़ से,
क्योंकि बच्चे तो बेचारे समझ नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको वो भी नहीं पता होता उसने कहाँ गलती की, और आप उसको बोलते हो तेरी वजह से ये हुआ। तो ये बहुत बहुत हम बड़ी मिस्टेक करें, वो ऐसा वैसे नहीं करनी है। सो लेट अस कम डाउन कि कैसा पेरेंटिंग करना चाहिए, हमें कैसा बिहेव बच्चे से करना चाहिए। जिस तरह से आप बोलते हो कि बच्चे प्रेमाल हो, बच्चे खुश हो, बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो, बच्चे का सेल्फ एस्टीम अच्छा रहे, बच्चा खुश रहे, बच्चा इंडिपेंडेंट रहे, तो हमें क्या, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हाउ डू वी रिफ्लेक्ट अवर बिहेवियर ऑन द चिल्ड्रन सो दैट चिल्ड्रन विल शेप इन ए बेटर वे। सो दैट इज नोन एज पेरेंटिंग स्टाइल। जब ऑफलाइन सेशन होता है तो हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं, हम आपके सबकी पेरेंटिंग स्टाइल देखते हैं कि आप किस तरह से पेरेंटिंग अपने बच्चों का करते हैं, लेकिन ये वर्चुअल सेशन में पॉसिबल नहीं होता है। आई विल डिस्कस द थिंग्स और क्वेश्चन आंसर में हम थोड़ी चीज लेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड के विच सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल यू आर एडॉप्टिंग और विच पेरेंट आर यू। पेरेंटिंग स्टाइल में 3 मेन चीज है जिस पे फोकस करके हम स्टाइल को नॉमिनेट करते हैं, कौन सी स्टाइल है। तो स्टाइल को डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करने के लिए हमने 3 मेन जो उसके डिनोमिनेटर्स है वो लिए हैं। वन इज लव, वार्मथ, एंड हियर लव इज अनकंडीशनल लव, आगे जाकर बात करेंगे व्हाट इज बिन शर्ती प्रेम, अनकंडीशनल लव क्या है। सेकेंडली एक्सेप्टेंस, इसकी भी थोड़ी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो इमोशनल एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ। हम लोग फिजिकली तो एक्सेप्ट करते ही, और हम जब पेरेंट्स को पूछते हैं कि आप आपके बच्चे को एक्सेप्ट करो तो वो हंसने लगते हैं, सर हमारे बच्चे हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो कौन करेंगे, हम तो एक्सेप्ट करते ही ना, फुल फ्लेज एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो मिथ है, वो उसके मगज में वो कुछ गलत घुस गया है। अगर आप उनके व्यवहार देखो तो व्यवहार में कभी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि बच्चे को एक्सेप्ट कर दे। वो क्यों, एक्सेप्टेंस के क्या पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है वो भी आगे बात करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस, आप अपने बच्चे को होलसम इमोशनली कैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। एंड लास्टली एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स, बच्चे के लिए हमारी क्या डिमांड है, हम बच्चे से क्या चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान में रख के हमने पेरेंटिंग स्टाइल को क्लासिफाई 4 क्लासेस में किया है। हम देखेंगे क्या क्या स्टाइल है, लेकिन दी फैक्टर्स विल बी लव, एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशंस, और या लव, वार्मथ, एक्सेप्टेंस और या डिमांड। तो ये हम देखते कि क्या है, एक एक करके हम पेरेंटिंग स्टाइल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑथोरिटेरियन स्टाइल। ऑथोरिटेरियन स्टाइल में क्या होता है कि एक मिलिट्री स्टाइल है, एक सार्जेंट स्टाइल है। घर में एकदम माँ बाप होते हैं तो एज इफ के आर्मी में या मिलिट्री में जैसे डिसिप्लिन होती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई सामने नहीं बोलेगा, कोई हिलेगा नहीं, सब सावधान रहेंगे, राइट। और ऐसे में पेरेंट्स कैसे होते, बहुत हॉस्टाइल होते हैं बच्चों की तरफ, कभी बच्चे को वार्मथ, कभी बच्चे को प्यार, कभी बच्चे को सिंपैथी, एम्पैथी, कुछ नहीं, बस आते ही जाने क्या गया, क्या किया, खाना खाया, कितने मार्क्स आए, आज रिजल्ट क्या आया, क्यों अभी तक सोया नहीं। दे आर ऑलवेज हॉस्टाइल टुवर्ड्स चिल्ड्रन, दे नेवर लव देयर, दे नेवर शो दैट दे लव देयर चिल्ड्रन, और दे आर वेरी हार्श एंड रिजिड इन देयर डिसिप्लिन। ऐसा करना ही पड़ेगा, इतने बजे सोना ही पड़ेगा, इतने बजे उठना ही पड़ेगा, ये काम करना ही पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी, एकदम हार्श, एकदम रिजिड। और कभी कभी हमने देखे माँ बाप वर्बल एब्यूज भी करते हैं और मारते भी है। एक्चुअली बच्चे को मारना, कॉर्पोरल पनिशमेंट, दैट वाज द बेसिस ऑफ हमारी मूवमेंट, जो माननीय श्री हसमुख भाई, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था कि हमको हिंसा प्रिवेंट करनी है, बच्चों में जो हिंसा होती है, एंड नॉट ओनली फिजिकल हिंसा, मैं खाली फिजिकल पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे अनेक गुनी ज़्यादा बच्चों के मगज पे इम्पैक्ट करती है वो साइकोलॉजिकल हिंसा या सूक्ष्म हिंसा हम बोलते हैं। जो हम वर्बल एब्यूज करते हैं वो सूक्ष्म हिंसा है, स्मैकिंग इज फिजिकल एब्यूज। तो ये दोनों हम अप्लाई करते हैं जब हम मार्शल लॉ लगाने जाते हैं। और ये एब्यूज, खास करके साइकोलॉजिकल एब्यूज, जिसको हम साइकोलॉजिकल इंजरीज भी बोलते हैं, छोटी छोटी इंजरीज हम देते हैं, बच्चे को इंसल्ट कर देते हैं, किसी के साथ कंपेयर कर देते हैं, उसको कुछ भी बोल देते हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम हम डाउन कर देते हैं, उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि वो एकदम निराश हो जाते हैं। तो ये सब साइकोलॉजिकल इंजरीज है, और ये इंजरीज दैट हैज मोर लॉन्ग टर्म एंड मोर ड्रेडफुल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर करना। क्या आगे हम थोड़ी वो भी बात करेंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है अगर आप ऐसे स्टाइल अप्लाई करते हो। आप बोलते हो कि नहीं बच्चे को तो करना ही चाहिए, नहीं तो बच्चे तो सर पे चढ़ जाते हैं, आप जानते नहीं हो मेरा बच्चा कैसा है, वो तो मारा मारी भी करने लगता है, उसका बोलने का कुछ ठिकाना नहीं है, जब तक मैं लकड़ी लेके नहीं बैठता हूँ तब तक वो तो उसकी शान ठिकाने नहीं है, उसे खान खींचने ही पड़ते। इवन टीचर्स भी कभी ऐसे बिलीव करते हैं कि नहीं डिसिप्लिन तो बच्चे को सोटी दिखानी पड़ती, नहीं तो ये बच्चे ठीक नहीं करेंगे। तो ऐसी हालत में बच्चे कैसे होते हैं, दे ऑलवेज बिकम स्कैर्ड टू गो होम। घर का एनवायरनमेंट उसको बहुत ऐसा लगेगा कि जाना ही नहीं चाहिए, डर लगता है, घर जाते पहले फफड़ेंगे, वो बाहर ज़्यादा समय निकालेंगे, दोस्तों के साथ अच्छी बुरी सोबत में पड़ जाएंगे, बाहर ज़्यादा और टाइम कहीं इन अप्रोप्रिएट जगह पे भी निकालेंगे, ज़्यादा मीडिया पे बैठे रहेंगे, ज़्यादा घर वाले से बात नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, कुछ गलत बता देंगे, खुद को
माँ बाप से बचाने के लिए वो कुछ न कुछ अलग तरीका निकालेंगे। और उसकी जो ट्रस्ट करने की जो अभी सब को ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को ट्रस्ट करें, बिना ट्रस्ट जीना मुश्किल है, पर माँ बाप के साथ ही उसका मिसट्रस्ट जो डेवलप होता है वही रिफ्लेक्ट सोसाइटी में होता है। वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा। कोई अच्छा आदमी भी उसको मिलेगा, कुछ अच्छा करने जाएगा तो भी वो करेगा कि नहीं ये तो मेरे साथ ऐसे करने वाला इसलिए बोल रहा है, इस पर विश्वास नहीं करना है। सोशल IQ, सोशल कॉम्पिटेंस, जो सोशलाइजेशन जो होना चाहिए वो भी कम हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी किसी के सामने बोल नहीं सकते, खुद सेल्फ एस्टीम एकदम डाउन हो जाता है, सेल्फ रेजिलियंस भी कम हो जाती है। और देखा गया कि जो बच्चे को ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल माँ बाप देते हैं, ऐसे बच्चे को मेंटल इश्यूज भी काफ़ी आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, ड्रग अब्यूज, ये सब चीज़ ये बच्चों में ज़्यादा देखी गई है। इवन एकेडमिक स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस पे भी इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऐसे बच्चे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो दिस स्टाइल इज बेसिकली एब्सोल्युटली अगेंस्ट दी पॉजिटिव पेरेंटिंग। सो ऑथोरिटेरियन स्टाइल से बच्चे को बहुत नुकसान होता है। एक लाइन में बोले तो आई एम द बॉस, यू लिसन टू व्हाट आई से, वो हमारा कंसेप्ट होता है। सो एक ग्राफ की तरह से बहुत अच्छी तरह समझा गया है। डिमांडिंग है, दैट इज एक्सपेक्टेशन, ये एक्सेप्टेंस, और ये क्या, लव। तो अगर आप ये देखो, हमने जो डिस्कस किया अभी, वो दैट इज ऑथोरिटेरियन स्टाइल, जिसमें मैक्सिमम डिमांड होती है, मे बी जेन्युइन, नॉन जेन्युइन, मे बी रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक। बच्चे का IQ बोले 90 हो, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 12वीं कक्षा में तो तेरा 97, 98% आना ही चाहिए, मेडिकल में जाना ही है। सो दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वार्म से बिल्कुल नहीं है। बच्चे की तरफ जो प्यार होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होना चाहिए, बच्चे को जो इमोशनल शेल्टरिंग मिलना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिलता। और बच्चे को हमेशा ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक्सेप्टेड नहीं है। ही फील्स रिजेक्टेड टू द फैमिली, ही फील्स दैट मेरी वजह से सब घर में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे कोई प्यार ही नहीं करता है, और इससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम डाउन होता है, और ऐसे बच्चे कभी आगे जाके सुसाइड्स भी कर लेते हैं। द सेकंड स्टाइल इज परमिसिव पेरेंटिंग। ना परमिसिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि बच्चा जो करता है करने दो, उसको कभी ना नहीं बोलो, तो उसको ये चाहिए दे दो। हम तो कार में नहीं घूम पाए, बच्चे को कार दे दो। बच्चे भले रोज बाइक पे आए जाए, उसको दे दो। उसको मोबाइल चाहिए, दे दो। बेचारा कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसको भी ये चीज़ चाहिए, दे दो। जो बच्चा मांगे दे दो। एंड बहुत इनकन्सिस्टेंट होते हैं वो बिहेवियर में पेरेंट्स। कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी एकदम लूज हो जाते हैं। आज बोलते हैं कि हम ये नियम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, कल वो खुद ही घूम जाते और कल कुछ नहीं बोलते। तो इनकन्सिस्टेंट, इसमें चाइल्ड कंफ्यूज बहुत होते हैं। बच्चे को क्या है, जब कंसिस्टेंसी को, खुद की तो थिंकिंग पावर है, खुद का जो फ्रंटल लोब है, या जो खुद की जो नेगोशिएटिंग या जजमेंटल एबिलिटी है, वो तो काफ़ी लिमिटेड होती है। इसलिए बच्चे अपने हिसाब से बहुत इमेच्योरली सोच लेते हैं, और वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूँ। एक दिन पापा बोलते हैं ये करो, एक दिन पापा बोलते हैं वो करो, मेरे को करना क्या है। एंड वो कभी बच्चे से कुछ अच्छा डिमांडिंग या रीजनेबल डिमांडिंग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते कि चलो ये तेरे को ये सीखना चाहिए, तेरे को ये आना चाहिए, तेरे को ऐसी बातें बोलनी चाहिए, तेरे को ऐसा बिहेव करना चाहिए। ऐसा कभी भी बच्चे में कोई एक्सपेक्टेशन, बस बच्चे को दे दो। हमें नहीं मिला है, हम कम नसीब थे, लेकिन बच्चे को ना मत बोलो। और ऐसे बच्चे फिर आगे जाके कैसे हो जाते हैं, ऐसे बच्चे अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, बिकम वेरी जिद्दी, बोलते हैं ना, जब मिस बिहेवियर की एक्सट्रीम होती है, हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को सब मिलता ही। और कभी एक चीज़ आप ना बोलोगे तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। बहुत इम्पल्सिव बन जाएंगे, तुरंत ही कुछ ऐसा काम कर देंगे कि बच्चे को खुद को डैमेज कर देंगे। और उनको पेसिफाई करना, उसको कंसोल करना बहुत मुश्किल होता है। वो लोग दूसरे के साथ मिक्स भी कम होते हैं। एंड ऐसे बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, और ऐसे बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका कम होता है। दे ऑलवेज रिमेन डिपेंडेंट। एंड ऐसे बच्चे कम रेजिलियंट होते, ऐसे बच्चे आगे जाके कम सक्सेस मिलती है। और ऐसे बच्चे कभी खुश नहीं रहते, और कभी खुश नहीं रहते तो वो कभी अच्छे इंसान या जवाबदार इंसान नहीं बन सकते। तो ये लाइन में हम समझे तो योर विश माई कमांड, हाउ कैन आई से नो टू यू। अगर इसमें भी ग्राफ में आप देखो तो डिमांडिंग बिल्कुल नहीं है। पेरेंट्स को कुछ नहीं है कि क्या बच्चा करे नहीं करे, कुछ लेना देना नहीं है। दे आर बिजी विद देयर प्रॉब्लम ओनली। एंड प्यार, देखो प्यार है, बच्चे को है कि भाई मेरे को मेरे बच्चे को सब दुनिया की खुशी मिलनी चाहिए, उसको सब खिलौने मिलने चाहिए, उसको अच्छी स्कूल में भेजना चाहिए, उसको अच्छा में अच्छा ट्यूशन मिलना चाहिए, उसको घर में भी अच्छी सब फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो प्यार तो है, फिजिकल काफ़ी कुछ एम्यूनिटीज आप बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और बच्चे एक्सेप्टेड भी है, बिकॉज दे से दैट उनको बच्चे के लिए इतना प्यार है, इतना अटैचमेंट, इतना बॉन्डिंग है, इसलिए हम बच्चे को दुखी नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ डेफिनेटली है, लेकिन डिमांडिंग बिल्कुल नहीं है। और जब आपका एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाता है तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा। और थर्ड स्टाइल है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। तेरे को जो करना है कर, मेरे कुछ लेना देना नहीं है, मैं मेरे काम में बिजी, मैं मेरे ऑफिस वर्क में बिजी, मैं मेरे मोबाइल में बिजी, तू अपने आप सीख, अपने आप कर, तेरे को जो आता है उतना कर। एंड हमेशा पेरेंट्स अपनी नीड पे ही फोकस करते हैं। तो ऐसे बच्चे
बहुत मतलब इमोशनली भी बहुत वीक रहते हैं, उनके स्कूल अचीवमेंट्स भी कम होते हैं, कोई ध्यान देने वाले, पढ़ाने वाले या मॉनिटरिंग करने वाले है ही नहीं। बिहेवियर प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं क्योंकि उनको प्यार नहीं मिलता है, उनको इमोशनल शेल्टर नहीं मिलता है, वो हमेशा तरसते रहते हैं प्यार के लिए। दूसरों बच्चों को देखते हैं उनको बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप तो ऐसा नहीं करते, मेरे माँ बाप तो स्कूल में पीटीए की मीटिंग में कभी नहीं आते, मेरा परफॉर्मेंस होता था मेरे माँ बाप तो कभी देखने भी नहीं आए कि मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ। मैं एनुअल फंक्शन में प्राइज़ लिया लेकिन मेरे माँ बाप तो नहीं आए थे देखने के लिए कि मुझे क्या मिला, मुझे लिए कितनी ताली पड़ी। तो ये सब डेफिशिएंसी बच्चों में रह जाए, इमोशनली बच्चे एकदम डेफिशिएंट हो जाते हैं। और फिर ऐसे बच्चे भी एंटी सोशल एक्टिविटी है या रिस्क टेकिंग बिहेवियर उसमें ज़्यादा चले जाते हैं, अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो दिस इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। हम बोलते हैं ना योर लाइफ योर विश, आपकी ज़िंदगी है, आपको जो करना है करो। सो दिस इज अनइन्वॉल्व और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। और ऐसे पेरेंटिंग में आप देखो प्यार भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है और बिल्कुल कोई डिमांड भी नहीं है। वो लोग कुछ चाहते भी नहीं बच्चे कुछ बने कुछ करें, वो प्रेम देना भी नहीं चाहते हैं, यस वो एक्सेप्ट भी करना नहीं चाहते, बस तेरी जिंदगी तू जी ले। तो ये भी बहुत गलत पेरेंटिंग स्टाइल है, इससे बच्चे को काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। लास्टली जिसमें हम फोकस करने वाले हैं दैट इज अथॉरिटेटिव या डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग या एजर्टिव पेरेंटिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पर ही बात करेंगे कि हम कैसे हमारी लाइफ में हमारे बच्चों के लिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग अपनाएं, जिसकी वजह से बच्चे को डेफिनेटली फायदा होगा, बच्चे डेफिनेटली साइकोलॉजिकली इमोशनली वेल बैलेंस्ड स्टेबल हो गए। आगे जाके ऐसे बच्चे बहुत खुश और बहुत रेजिलियंट रहते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। लिसन्स टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेक इनटू अकाउंट। हमेशा कोई भी डिसीजन ले, कोई भी रूल बनाए, कोई भी डिसिप्लिन की बात हो, कोई घर के लिए कोई डिसीजन हो, जैसे घूमने जाना हो, घर पे कोई चीज़ लानी हो, तो उसमें हमेशा वो बच्चों को साथ में रखते हैं। जैसे हम डेमोक्रेसी में बोलते सबको साथ में, सबका डिसीजन लेके काम करते हैं। होम पार्लियामेंट बिठाते हैं, बच्चे का अपना व्यू लेते हैं, बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू रखने देते हैं और उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं कि या बेटा आपने ये सिलेक्ट किया, दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया। फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स बच्चे के साथ डिस्कस कर बच्चे को कन्विंस करते हैं कि आप ये बोल रहे हो ये करना है लेकिन इसमें ये आप बोलते हैं अभी आपको मोबाइल चाहिए लेकिन मोबाइल में देखो ये डिसएडवांटेजेस है, मोबाइल के इतने हार्म्स है, मोबाइल से इतनी चीज़ें होती है। बैठ के प्यार से डेमोक्रेटिक वे में गोल टेबल पे बैठ के बच्चों को समझाएगा। दैट इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अलाउ देयर चाइल्ड फ्रीडम बट हैव कंसिस्टेंट रूल्स एंड बाउंड्रीज। सी इसका मतलब ये भी नहीं है बच्चे जो बोले वो करे, एक हमारी भी एक खुद की रूल्स होगी, एक बाउंड्रीज होगी, लेकिन इट शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी जेन्युइन, इट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो फिर अगेन वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग हो जाता है। तो आप जब भी कुछ रूल्स बनाते हो तो बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। कभी कभी पेरेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं होती है, माँ ये बोलती है बाप ये बोलता है, तो अगेन बच्चा कंफ्यूज्ड कि भाई माँ ने तो बोला जाने का, दादी ने तो बोला चॉकलेट खाने का, पापा मना कर रहे हैं तो क्या करूँ, खाओ कि नहीं खाओ, फिर वो गलत झूठ बोल के भी खाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। एंड एनवायरनमेंट आपको एकदम एम्पैथी और लव वाला एनवायरनमेंट देना चाहिए। बच्चों को महसूस होना चाहिए कि आई एम सेफ इन माई हाउस। जब मैं घर में जाता हूँ मेरे को दुनिया की खुशी मिल जाती है, मेरे माँ बाप मेरे साथ है, मेरे दुनिया का मुझे किसी का डर नहीं है। वो माहौल, वो प्यार आप सेट करने की कोशिश करो और अच्छे बिहेवियर बच्चे में आए। सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड अचीवमेंट फॉर देयर चाइल्ड। एक्सपेक्टेशन अच्छे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल एक एक्सपेक्टेशन बनाओ और वो एक्सपेक्टेशन फुल पोटेंशियल बच्चे फुल पोटेंशियल में काम कर सके ऐसा माहौल करो और एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आप ला सकते हो अगर ये करो तो। एंड दिस सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग इज नोन टू बी वेरी वार्म एंड वेरी सपोर्टिव। आज हम भी मानो कि एक ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल में काम करते हैं, अगर प्रिंसिपल अपने हिसाब से ऑथोरिटेरियन स्टाइल में काम करते हैं तो धीरे धीरे टीचर का इंटरेस्ट चला जाएगा। टीचर कई टीचर्स छोड़ भी देंगे, तो अपने को पूछते भी नहीं है क्या करना है, कि हमें क्या तकलीफ है, या हमारा कभी ओपिनियन लेते ही नहीं है। तो कोई भी जगह पे अगर आपको डेमोक्रेटिक वे में ट्रीट नहीं किया जाएगा तो यू विल फील रिजेक्टेड एंड यू विल लीव दैट प्लेस। सेम थिंग हैपन्स विद द चिल्ड्रन ऑल्सो। घर में भी उसको वो माहौल मिलेगा कि भाई अच्छा प्रिंसिपल मिलेगा, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे, उनके साथ अच्छी बात करेंगे, उनकी बात को वैल्यू देंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो बच्चे को लगेगा, बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। दे विल फील कि आई एम इम्पॉर्टेंट टू दिस फैमिली एंड दैट फीलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन एट ऑल फ्रंट्स। तो वो फीलिंग लाने के लिए भी आपको ये माहौल करना पड़ेगा। हमें वो उनको समझाना पड़ेगा योर ओपिनियन मैटर्स, लेट्स टॉक एंड गेट वे आउट ऑफ इट, राइट। और ऐसे बच्चे जो ये माहौल में पलते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, सोशली कॉम्पिटेंट भी होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम भी हाई होता है, स्कूल में भी अच्छे ग्रेड्स आते हैं, उनका लेवल ऑफ मिसबिहेवियर भी मिनिमम रहता है, उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज ड्रग एब्यूज भी कम से कम होता है एंड दे कैन फॉर्म एंड सस्टेन रिलेशनशिप्स। समाज में हमें रिलेशन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सोशल IQ हाई चाहिए
So we should maintain our good relationship with all our surroundings, with our relatives, with our parents, with our siblings, with our society, with our जो कलीग्स बिजनेस में सब जगह पर अगर रिलेशंस मेंटेन करने की जो एबिलिटी है, वो जो लाइफ स्किल है, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे के लिए सुनना, एक दूसरे के लिए कंसर्न रखना, वो एबिलिटी अगर बच्चे में आपको इनकलकेट करनी है तो स्टार्ट अप्लाइंग ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसमें देखो तो डिमांडिंग भी है, लेकिन वी विल हैव अ रियलिस्टिक डिमांड, जेन्युइन डिमांड होगी बच्चे से, जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस हो गए, फुल ऑफ लव है, बच्चे को हमने फुली एक्सेप्ट किया कि बच्चे का ओपिनियन लेके ही हम काम करते. सो दिस इज द बेस्ट स्टाइल जो हमें अप्लाई करनी चाहिए, और ऐसा पेरेंटिंग करेंगे डेफिनेटली आपके बच्चे मिसबिहेवियर भी कम करेंगे और दे विल सक्सीड एट ऑल फ्रंट्स इन देयर लाइफ, राइट. सो हैप्पी चाइल्ड, कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाना हो, सेल्फ एस्टीम वाले चाइल्ड बनाना, हाई EQ, इमोशनल क्वोशंट और सोशल क्वोशंट, तो उसको ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल अपनाने की जरूरत है. अभी हम थोड़ी लास्ट 10 मिनट्स में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे, व्हाट आर द टिप्स टू अडॉप्ट द ऑथोरिटेटिव स्टाइल इन आवर लाइफ फॉर आवर चिल्ड्रन. सो लेट अस सी. ये एक चीज अभी बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने स्लाइड रखी है. एक्चुअली दिस डजंट फॉल इन एनी 4 कैटेगरीज ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑथोरिटेटिव एंड परमिसिव जो बोलते हैं पेरेंटिंग वो है. लेकिन थोड़ी बात इसलिए करते हैं कि अभी ज़्यादातर पेरेंट्स में ये इश्यू है, पूरे दिन बच्चे पे हेलीकॉप्टर की तरह घूमते ही रहते हैं. बच्चा कहाँ गया, क्या खाया, यहाँ गिर तो नहीं गया, उसको नहीं लगी तो नहीं, उसको घंटे घंटे में पानी तो नहीं पिया होगा, कैसा हो गया होगा, बार बार टीचर्स को फ़ोन करेगा, बार बार टीचर को मिलेंगे, मेरे बच्चे को 1 घंटे के बाद उसको सुसु करने जाना पड़ता है, जाने देना है, उसको ये तकलीफ है, उसको करने 2 घंटे के बाद उसको खाना देना है तो भूखा भूखा रोने लगेगा. बच्चे के पीछे भी बच्चे आते हैं तो क्या खाया, क्या पिया, तेरी बैग में क्या है, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, ये होमवर्क किया कि नहीं, ला तेरा होमवर्क मैं कर दूँ, ला तेरे को ये असाइनमेंट दिया, चल मैं बैठ के कर देता हूँ, पूरे दिन बच्चे के पीछे. तो ये बहुत अच्छा है, ये बारी जेड वेंगवर ने बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं ये कोट लिखा हूँ, कैन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी कंसीवेबल रिस्क ऑफ हार्म पोटेंशियली एट द एक्सपेंस ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस. ये जो हेलीकॉप्टरिंग करते हैं इसमें चाइल्ड बच्चों का डेवलपमेंट और एज अप्रोप्रिएट बच्चे को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, और बच्चे अंदर से इतने परेशान होती है, बाप रे आफत आ गई, मेरी मम्मी आ गई, अभी टोक टोक चालू हो जाएगा, अभी वो पूछते हैं. कभी बार तो बच्चे पहले बोलते हैं, मम्मी सवाल पूछते, बच्चे बोलने लगते हैं, हाँ पूछ क्या खाना खाया, क्या पिया, ये किया वो किया. तो इसमें बच्चे की साइकोलॉजी भी ये बहुत बिगड़ जाती है, फिर बच्चे फिर डिपेंडेंसी बच्चे में नहीं आती है. दे विल ऑलवेज रिमेन इन द फिजिकल शेल्टर ऑफ योर्स. कुछ भी करना हो तो बच्चे विल ऑलवेज डिपेंड ऑन पेरेंट्स. मैंने देखा है कि हम कभी कभी छोटे बच्चे ना, हमारी आदत होती है बच्चे को सब पढ़ के बाजू में बैठ के ही पढ़ाते हैं. नहीं तो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे माँ उठ गई बच्चा भी उठ गया, तो बचपन से आदत डाल देते कि बाजू में बैठ के ही पढ़ना है. मैंने कॉलेज स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट को भी देखा है कि जब एग्ज़ाम आती है तो वो MBBS के सब्जेक्ट उसकी माँ पूरी रात उसको पढ़ के सुनाती है, वो आराम से सुनती है. तो एग्ज़ाम के दिन वो कभी कभी सो जाती है, लेकिन माँ को पूरी रात जगना पड़ता है. तो देखो ये बचपन की जो आदत है वो कहाँ तक पहुँचती है. कॉलेज में मतलब ऑलरेडी एडल्ट 18+ ईयर्स होती है, तब भी वो स्टूडेंट को आदत है कि मेरी माँ बैठे मेरे को पढ़ के सुनाए. तो ये बहुत गलत चीज़ होती है. और ये हम जो अगर रोप बांध देंगे ना, ये एलिफेंट की स्टोरी सबने सुनी होगी, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है कि एलिफेंट का बच्चा जब छोटा बेबी एलिफेंट होता है तो उसको दूरी से एक दोरडा से बांध देते हैं. तो इतना वो नहीं हैवी या इतना स्ट्रेंथफुल नहीं होता है, एक दोरडा ही होता है, दोरडा से बांध के उसको खींची से लगा देते हैं. छोटा बच्चा, छोटा एलिफेंट नहीं भाग पाएगा, वो बंधा ही रहेगा. लेकिन फिर अगर आप देखो सर्कस में जाओ या कहीं आप सफारी में गए तो आपने देखा बड़े बड़े एलिफेंट होते हैं, उसके पैर में भी यही डोरी बांधी होती है. सोचो इतना बड़ा एलिफेंट जो कुछ भी फोड़ के भाग सकता है, लेकिन ये डोरी तोड़ के नहीं भागेगा. तो हमने एक बार उसको पूछा कि भाई इतना बड़ा एलिफेंट है, उसको छोटी डोरी से बांधने का क्या फायदा. तो बोले कुछ नहीं, फायदा है, वो एलिफेंट समझ जाता है कि ये डोरी वो तोड़ नहीं पाएगा. तो ऐसा क्यों हुआ. तो बोले बचपन से जब से उसका जन्म हुआ तब से हमने उसको डोरी से बांध के ही रखा है, तो ये उसको दिमाग में बैठ गया है कि ये डोरी मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, डोरी तोड़ के मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो उसका बेनिफिट हम ले रहे. तो देखो ये सेम साइकोलॉजी, सेम थिंग अप्लाइज फॉर आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि डोरी से हमने बांध दिए बच्चों को हेलीकॉप्टरिंग करके, फिर वो बच्चा बड़ा होगा, खुद में पोटेंशियल होगी, खुद में एबिलिटी होगी, कुछ कर पाने की हैसियत में होगा, लेकिन वो नहीं करेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. क्योंकि मैंने बताया अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट बिलीफ सिस्टम क्या यूज है, एक बार गलत बिलीफ सिस्टम बैठ जाती है तो फिर ये आदमी कुछ कर नहीं सकता है. लास्ट मैसेज अभी मुझे देना है प्रिंसिपल्स ऑफ पेरेंटिंग में 3 A's. मैंने थोड़ा इसमें कंडेंस किया, काफ़ी कुछ चीज़ें हम 2-3-4 घंटा बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कैरी होम मैसेज आप घर पे क्या ले जा सकते हो. सो रिमेंबर दिस 3 A's फॉर द ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग. द पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल
मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन नोन टू मैनकाइंड। सी इतना बड़ा, इतना पावरफुल सेंटेंस है, पूरे मैनकाइंड में कोई जो पावरफुल मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन कुछ है तो यही है कि आप कनेक्टेडनेस रखो आपके बच्चे के साथ। तो कनेक्टेडनेस कैसे रखें? तो 3 A याद रखना है। बच्चे को एक्सेप्ट करना है, बच्चे को एक्नॉलेज करना है, और जहाँ जहाँ जरूरत हो या जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ बच्चे को अप्रिशिएट करना है। 3 A सीख के मैं मेरा लेक्चर पूरा करूँगा। तो एक्सेप्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आगे बताया कि हम ऐसा मानते हैं कि हम बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ऐसा बच्चे को फीलिंग नहीं करवाते कि आप मुझे एक्सेप्टेड हो। याद रखो, बच्चा एक गोल्डन गिफ्ट है आपके लिए। कहीं माँ ऐसी है, कहीं फैमिली ऐसी है जिनको बच्चा नसीब नहीं हुआ है, उनको जाके पूछ सकते हो उसकी व्यथा क्या है। तो आपको भगवान ने बच्चा दिया है तो टेक इट एज ए गोल्डन गिफ्ट एंड इट वाज योर चॉइस। सी बच्चा जबरदस्ती से आपकी दुनिया में नहीं आया है, आपने चॉइस की बच्चा चाहिए और बच्चा आया है। तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देम। इट इज यूनिक फॉर यू, डोंट कंपेयर विद एनी चाइल्ड। आपका बच्चा है। तो एक लाइन में बोले तो यू एक्सेप्ट योर चाइल्ड वॉट एवर ही और शी इज। आपने देखा ये फोटो में, ये एक्चुअली डाउन सिंड्रोम का है, मंगोलिज्म करके चाइल्ड, जिसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है। 21st क्रोमोसोम की जो पैर होती है ऑटोसोम की, वहाँ पे 3 क्रोमोसोम होते हैं 2 की जगह। तो बच्चे ऐसे डाउन सिंड्रोम होते हैं, उसका मेंटल IQ भी कम रहता है, हाइपोटोनिक रहते हैं, डेवलपमेंटल डिले होता है। फिर भी आप देखो जो माँ उसको प्यार, हमने तो प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हो, जो स्पास्टिक हो, जो मेंटली रिटार्ड, हम जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, फिर भी माँ बाप इतना प्यार देते हैं उसको। बड़े बड़े होते तो उठा के लेके आते, छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें फ़ोन करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे दिस इज द लव, दिस इज द एक्सेप्टेंस एंड दैट वी शुड लर्न। कैसे? तो अनकंडीशनल लव देना है। चाहे आपका बच्चा कैसा भी परफॉर्म करे, कुछ भी करे, आपको प्यार देना है। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, होशियार हो, डल हो, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको उसको प्यार देना है। दिन में 3, 4, 5, 6 बार जब भी आपको अपॉर्चुनिटी, बच्चे को हग करना है, बच्चे को किस करना है, बच्चे के पीछे अगेन हक करना है। ऐसा कोई डोज नहीं है डॉक्टर की तरह के सुबह उठो तब और दोपहर में और रात को सोते समय, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आपको मौका मिले यू शो। कई बार क्या होता है, हम प्यार करते हैं बच्चों को, लेकिन हमने कभी दिखाया नहीं कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। सो बच्चे को हक करना, बच्चे को किस करना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चे जानेंगे कि आप उसको प्यार करते हो। एंड दिस जेस्चर्स, दिस लव विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड और दे विल गिव इमोशनल एंड फिजिकल प्रोटेक्शन टू द चाइल्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं फास्ट जाऊँगा। कई बार हम कहते हैं कि ज़्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा कोट है कि टू मच लव नेवर स्पॉइल्स चिल्ड्रन। ज़्यादा प्यार करने से बच्चे बिगड़ते नहीं। चिल्ड्रन बिकम स्पॉइल्ड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट प्रेजेंस फॉर प्रेजेंस। हम फिजिकल काफ़ी चीज़ बच्चे को देने का प्रयास करते हैं, हमारी जहाँ हाजिरी की ज़रूरत है वहाँ हाजिरी हम निकाल के बच्चे को गिफ्ट दे देते हैं। दैट इज़ द इश्यू। लिमिटेशंस, एक्सपेक्टेशन, डिमांड जो हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल में, ऑलवेज कैलकुलेट। आपके बच्चे का आप असेसमेंट कर लो कि आपके बच्चे की IQ कितना है, आपके बच्चे की पोटेंशियल कितनी है, आपके बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, आपके बच्चे को क्या लाइकिंग है, आपके बच्चे को क्या नहीं लाइकिंग है। वो सब फैक्टर्स ध्यान में रख के आप एक्सपेक्टेशन रखो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने से बच्चे का खुद का आत्मविश्वास चला जाता है। फिर बच्चे खुद के पास भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगेंगे और दैट विल बी वेरी डैमेजिंग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट। और वो अचीव नहीं करेंगे तो वो बच्चे इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि एवरीबडी इज जीनियस, बट इफ यू जज ए फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो कोई पैरामीटर से हम जज नहीं कर सकते। सब बच्चे की अपनी अपनी यूनिक टैलेंट होती है और वो टैलेंट में उसको आगे बढ़ाना। कंपैरिजन कभी नहीं करनी है। आगे कई बार बात हो गई है। कई बार हमारा मोटिव अच्छा होता है, कंपेयर करके हम बच्चे को इंस्पायर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे कभी इंस्पायर नहीं होते। बच्चे ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, बच्चे सबसे हॉस्टाइल हो जाते हैं, बच्चे को खुद का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है, बच्चे अनएक्सेप्टेड फील करते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगता है बाजू वाला छोकरा और जो लड़के वो मेरे माँ बाप को अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। सो नेवर कंपेयर। कंपेरिजन करना ही हो तो खुद की कंपेयर करो कि भाई लास्ट ईयर जो तेरा 90% आया था, इस बार तेरा 93 आया था, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, आपको ऐसे ही करना है। आपने बहुत अच्छा मेहनत की है, बहुत आगे बढ़े हो, 93 का हम 96 भी कर सकते, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करते। So that is self comparison. So comparison is the thief of childhood joy. तो बच्चे को अगर खुश रखना है, कंपैरिजन कभी नहीं करना है? और बच्चे के अपने सपने होते हैं, वो पूरे करने दो। आप अपने सपने बच्चे पे मत डालो। मैं बोलता हूँ मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बच्चा डॉक्टर बनना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने 3 इडियट्स पिक्चर देखी है, हमको मालूम है कि हमारे ड्रीम्स बच्चों को नहीं थोपने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। लेट देम फुलफिल देयर ड्रीम। चिल्ड्रन हैव देयर ओन ड्रीम्स, वो उनको पूरा करने दो। ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने उस स्टोरी में बताया
कभी भी ब्लेम गेम नहीं करना है। बच्चे कभी जानबूझ के कोई गलती है जानबूझ के कुछ चीज़ नहीं करते, और जब ब्लेम करते हो तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम एकदम बॉटम पे आ जाता है, और ऐसे बच्चे साइकोलॉजिकली काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे जाके आ सकता है। थोड़ा हम टाइम रहेगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन में भी थोड़ी बातें करेंगे। सो वर्ड्स कैन किल योर चाइल्ड, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग देम। फीलिंग्स बच्चे की एक्नॉलेज करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे मानो कि स्कूल से आते हैं, उनका कंपास गुम गया, वो आके रोने लगते मेरा कंपास गुम गया, तो हमारा लेक्चर चालू हो जाता है, तू एकदम बेदरकार है, तेरे कुछ पता नहीं है, आज की कितना कंपास तेरे को दिलवाया, हर एक बार तो हर दिन एक कंपास को क्या आता है, ये क्या अलग चीज़ होती है। तो ये सब चीज़ ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हमें उसकी फीलिंग्स को, अभी उसको दुख हुआ है कि उसका एकदम बहुत अच्छा लगता था कंपास, बहुत संभाल कर उसने वो गुम हो गया है, तो फीलिंग को एक्नॉलेज करो। वो इटसेल्फ एक बड़ा सेशन है, बड़ा सब्जेक्ट है। वेणुगोपाल जी साथ में, उनको मालूम होगा कि ये भी एक साइंस है, ये भी एक स्किल है, वो सीखनी पड़ती है। लेकिन आज मैं खाली ओवरव्यू देता हूँ कि जब भी आए तो फोकस ऑन द फीलिंग्स, डोंट फोकस ऑन व्हाट हैज हैपेंड। किसी ने धक्का दिया, हमारा रोता रोता है तो सीधे माँ स्कूल में पहुंच जाएगी, फादर को बोलेंगे उसकी मम्मी को बुलाओ, उसके बेटे को बुलाओ, उसने मेरे बेटे को धक्का दिया। सो दिस शुड नॉट बी योर रिएक्शन। ऐसा होने से बच्चे और डर जाते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी माँ बाप दोनों दौड़ के स्कूल में आ गए, इतना हल्ला मचा दिया, इनको बुलाया। फिर दूसरी बार क्या होगा, बच्चे आपको बताएंगे नहीं क्या हुआ। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए बच्चा खुद डर जाए कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या हो गया मेरे पे कि मेरे माँ बाप इतने एक्साइट हो गए। सो ऑलवेज एक्नॉलेज देयर फीलिंग। छोटी छोटी फीलिंग आप एक्नॉलेज करोगे, या तो आप उनको इंसल्ट करोगे या फीलिंग एक्नॉलेज नहीं करोगे, उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम रह सकता है। एक्टिव लिसनिंग, अगेन वाइड टॉपिक बट थोड़ा ओवरव्यू। एक मैडम ने बहुत अच्छा बताया था कि बच्चे को हमेशा कान से नहीं लेकिन दिल से सुनना है। कैसे दिल से सुनेंगे वो भी हम देखेंगे ब्रीफ में, वेरी ब्रीफ में। एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन इज टू लिसन टू देम। सी इट इज द इमोशनल फर्स्ट एड फॉर द चाइल्ड। जब हमें कोई चोट लगती है तो हम बैंडेड लगाते हैं, हम खून बंद करते हैं, हम पट्टा लगाते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल इंजरीज। पर जब साइकोलॉजिकल इंजरीज होती है, जब इमोशनल इंजरीज होती है, तो तब अगर कोई बहुत अक्सर कोई दवा हो, अक्सर फर्स्ट एड हो, तो बच्चे को सुनना है। अगर आप सुनते हो, ऐसा कहा जाता है कि 60-70% आपका जो इमोशनल दर्द है, इमोशनल जो वजन है, वो कम हो जाता है। हमने भी देखा है जब हम बहुत तकलीफ में हो, हमारी कोई सुनते हैं, कोई अच्छी तरह से ध्यान दे के हमारी बात को सुने, तो अपने को रिलीफ लगती है, अच्छा लगता है। सेम थिंग इज फॉर चिल्ड्रन। अगर उसको सुनो तो आप उसको अच्छा लगता है। यू हैव 2 ears and 1 mouth, यूज देम प्रोपोर्शनेटली। सो माउथ कम यूज करना है, ईयर्स ज़्यादा यूज करना है। और हमारा भी ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, हम कभी सुनना ही नहीं चाहते। हम अभी हमेशा सुनते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सामने जवाब देने के लिए हम सुनते हैं, हम उनको सुनने के लिए नहीं सुनते। और सी रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन अर्नेस्टली टू एनीथिंग योर चिल्ड्रन वांट टू टेल यू, नो मैटर व्हाट। If you don't listen eagerly to the little stuff when they are little, they won't tell you the big stuff when they are big, because to them all of it has always been a big stuff. See, कई बात ऐसी होती है, ये छोटी बात के लिए क्या रोन रहा है, तू क्या लड़की जैसा बात करता है, एक हो गया दूसरा दिला देंगे, वो ऐसा नहीं है। सी, उनकी बात सुनो, उनको एक्नॉलेज करो, बिकॉज वो तुम्हारे लिए छोटी बात है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। सो अगर अभी ध्यान से एक्टिवली आप सुनोगे तो आगे जाके भी जो उसको तकलीफ आती रहेगी आपको सुनाते रहेंगे। He will be open in terms of healthy communication. अगर आप उसको अच्छी तरह से सुनोगे नहीं तो आगे जाके वो बड़ी बड़ी बातें होगी, सीरियस बातें होगी तो भी आपको नहीं बोलेंगे और फिर कुछ और गलत रास्ता पकड़ लेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्टिवली सुने, आई कॉन्टेक्ट रख के, अटेंटिव रह के, अच्छा रिस्पॉन्स दे के, बीच में बिल्कुल बोलना नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं देना है, कोई ब्लेम नहीं करना है, कोई जज नहीं करना है, बस बच्चे को सुनना है। एक थोड़ा टाइम हो तो एक वीडियो देखें हम। हेलो, तो वो जो एडोलेसेंट, हाँ वीडियो 2 एक बार देख लेते फिर बात कर। ठीक है, श्योर सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, Just a moment, sir. Just forgot to share the sound. कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या? कुछ कहना है बेटा? एक्चुअली वो माँ आज स्कूल में क्या? आज स्कूल में रिसेस में वो अभिषेक है ना, अभिषेक ने क्या किया? अभिषेक ने मुझे अलग बुलाकर आई लव यू कहा।
मैं उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हूँ। मम्मा, लेकिन मम्मा एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात मत लगा मुझे, बात मत कर तू मुझसे। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों की? खाने में कोई कमी रह गई क्या? किसी चीज की रोक टोक नहीं है, जो मांगा वो दिया, फिर भी ये सब। कि मॉम एक बार मेरी कब से चला तेरा चक्कर? हाँ बोल ना, कब से चल रही है चक्कर? तू नहीं बढ़ावा दिया होगा, वरना उस लड़के की हिम्मत नहीं होती। तो बहुत अच्छा वीडियो हमने देखा। बेटी बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत क्रिटिकल बात शेयर कर रही है मदर से। सी हाउ मदर रिएक्टेड। वो उसका पूरा सब्जेक्ट ही बदल दिया, उसने पूरा नर्चरिंग पे ले गई और सुनना ही नहीं चाहती थी। बिफोर शी कंप्लीट्स शी वाज नॉट लिसनिंग टू हर। सो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको एक्टिवली लिसन करना चाहिए। और देखो, फीलिंग ऑफ आई एम अंडरस्टूड इट कम्फर्ट्स द चाइल्ड। बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे समझ रहे, मेरे पेरेंट्स मुझे सुनते हैं। एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, सेम अगेन आप काफ़ी कुछ जानते हो कि बच्चे को अप्रिशिएट करो। क्रिटिसिज्म अभी हम थोड़ा शायद डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर में आएंगे तो करेंगे, लेकिन एप्रिसिएशन की मैं डेफिनेटली बात करूंगा कि हम क्या करते हैं कि बच्चे को अप्रिशिएट कैसे करते हैं कि बस तू तो सचिन तेंदुलकर इधर खेल कर, यू आर ऑलवेज टॉपर, तेरा तो हमेशा फर्स्ट रैंक आएगा, तू तो एकदम टॉप बैट्समैन है, तू तो यही रहेगा। हम बच्चे को ऐसा लेबलिंग, सुपीरियर लेबलिंग भी कर देते हैं, उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होता है। और जब बच्चे मार्क्स नहीं लाते हैं, आप 95, 96 ऑलवेज उसको लेबलिंग करते हो कि यू आर टॉपर, आपका ये फर्स्ट रैंक आएगा, और तब बच्चे का कम मार्क्स आते हैं, वो रैंक कम आता है, तो ऐसे बच्चे फिर गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो नेवर अप्रिशिएट इन दैट वे। सी एक बहुत प्रिंसिपल है पेरेंटिंग का कि अप्रिशिएट, या तो आपको प्रेस करना हो तो उसका जो एफर्ट्स है उसको प्रेस करो, उसके रिजल्ट को प्रेस मत करो या उसको लेबल मत करो कि तू इतना अच्छा है। उसने क्या किया वो अप्रिशिएट करना जरूरी है। तो जब बच्चा कुछ करता है, सपोज के एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाए, तो उसको अप्रिशिएट करो कि बस आपने मेहनत बहुत अच्छी की, आपकी प्रिपरेशन बहुत सिस्टमेटिक थी, इसलिए आपकी प्रिपरेशन का ही नतीजा है कि आपको इतने अच्छे मार्क्स है। पर यू आर सुपीरियर, यू आर टॉपर, ऐसा करोगे तो दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रिशिएट। बिकॉज जेन्युइन प्रेज नहीं करोगे तो वो बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, कभी डीमोटिवेट कर देंगे। स्पेशली व्हेन वो अचीव नहीं कर पाएगा तो बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। सो ऑलवेज अप्रिशिएट प्रॉपरली, स्ट्रक्चरली। एक दिया है कि आउटलाइन दी कैसे अप्रिशिएट करना। सपोजिंग आपकी बेटी ने कभी घर में एकदम साफ सुथरा करके रख दिया, आप जाके देखते हो, और अगर आपको अप्रिशिएट करना हो तो कैसे करोगे? आई सी ए क्लीन फ्लोर, स्मूथ बेड एंड बुक्स नीटली लाइंड अप ऑन द शेल्फ। तो ये आपने डिस्क्राइब किया, वॉट एवर यू सी डिस्क्राइब दैट थिंग, देन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। इट्स प्लेजर टू वॉक इन दिस रूम, सो नीट एंड सो क्लीन। और लास्ट में आपको उसको एक वर्ड में उसको लेबल करना है, जैसे यू सॉर्टेड आउट योर पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, पेन्स एंड पुट देम इन सेपरेट बॉक्सेस, दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द वे। हमारे मुंह में क्या फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ग्रेट जॉब, दिस इज नॉट द वे ऑफ एप्रिशिएशन। और इससे बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलता है। बच्चे को मोटिवेशन तब मिलता है जब आप सिस्टमिक वे में ये 3 स्टेप में अप्रिशिएट करो। तो स्पेशली उसको प्रेस करो, दूसरों के सामने करो। कोई पड़ोस से सर बात करते हो, किसी के साथ बात करते हो, तो उनके सामने उसको अप्रिशिएट करो, देखो मेरी बेटी इतना अच्छा काम करती है, इतना घर साफ सुथरा रखती है। इट इज सेड साइकोलॉजिकली कि ये बच्चे के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, बच्चे का सेल्फ एस्टीम को बहुत बूस्टअप देती है। तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बच्चे को दो, स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेंडिंग मनी ऑन चिल्ड्रन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी पूरे दिन फेसबुक पे हो और ये सिंक में बच्चा पड़ा रहे और आपने को बोले भाई इफ यू सी माई मॉम ऑन फेसबुक प्लीज रिमाइंड हर आई एम स्टिल इन द सिंक, राइट? So lastly, last slide, कि parents need to fill a child's bucket of self-esteem so high that the rest of the world can't poke enough holes to drain it dry. ये सब चीज़ करने से, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल्स के सब स्टेप्स फॉलो करने से आप बच्चे को सेल्फ एस्टीम बच्चे का बहुत बूस्ट करते हो, और सेल्फ एस्टीम का एक कवच बना दो जिससे बच्चा पूरा प्रोटेक्ट हो जाए। क्योंकि दुनिया में कई लोग पड़े या कहीं सिचुएशन आएगी जब उसके सेल्फ एस्टीम की जो टाइट वॉल है उसमें पोक हो सकते हैं, उसमें पंचर हो सकते हैं, और दिस कैन लीड टू फिजिकल एंड इमोशनल डैमेज टू द चाइल्ड। सो हम आज ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के जो टिप्स है उसको अपना के ऐसा पावरफुल एक कवच बनाएंगे जिसकी वजह से बच्चे को कभी ये भुगतना नहीं पड़े। सो व्हाट शुड नॉट बी हर्ड बाय लिटिल ईयर्स शुड नॉट बी सेड बाय बिग माउथ्स। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। सॉरी थोड़ा टाइम शूट हुआ है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू आर कंफर्टेबल, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द पेशेंस लिसनिंग। आई होप आपको कुछ कैरी होम मैसेज मिले या आपको कुछ ये इसमें से फ्रूट्स ये डिस्कशन में से मिला हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Dr. Salim, in fact, we should thank you. Okay, it's not about time. It's the quality. It's the content. What you have shared with us. You took us all back into a journey where we each one of us could correlate, and there is so much Thank you, to sir. understand, so much to learn. Yes, what is most important, as you have reiterated it again and again, that it is the adult behavior which needs to be understood much more. And that Yeah. is what needs to be worked on. We are here to Thank work you. on that together. And dear parents, please feel free to share your queries. Of course, most of the questions which were there have been shared with Dr. Salim, and he has tried to Yes, cover yes. them. However, live, if anybody wishes to ask any question, please feel comfortable. Most of the questions were regarding hyperactivity and misbehavior and other thing. I think most of the things we have covered as a basic principles. Still, if you want to need more clarification, you can ask me again. I will try to elaborate it. You can read out the questions if you get from the live session also. I think you've covered most of them in your own session. You have entirely taken up all the issues that the parents had, the concerns in their minds. You have covered it Yeah, in your. It has been very descriptive, very informative. Though, however, we will have any questions, we will surely ask the parents to share with us. And maybe once again, we'll trouble you for that later. Definitely, But then anytime, right now, anytime. answered most of them which I had Yes, shared with sir. you earlier, very hyperactive, aggressiveness, all those issues, how to basically nurture a child. I think everything has been answered by you. We have covered only 30 to 40% of the total session. So definitely when we get chance again in the future, we'll definitely meet and have more detailed discussion of all these aspects. Because each and every tip needs to be elaborated in a very understandable way. Then only parents will be able to adapt it in a practical life. In fact, what we will do is we'll try to kind of collect a feedback, and we can ask them that for which particular portion they will Yeah. need elaboration, Yeah. and we'll conduct that Definitely. accordingly. That will be great. That will be the best idea. Yeah. Yes. Sure, sir. Sure. Yes. Tina ma'am, sir, can we continue with it? Yes, Session? thank you Please. so much, ma'am. सर आपकी बातें तो दिल को छू गई. हम बच्चों पे अरे. इल्जाम लगाते हैं, जबकि कई बार हम खुद उस चीज के लिए जिम्मेदार. बिल्कुल सही कहा. And you have focused wonderfully on the most important points for effective parenting. That is our unconditional love, emotional acceptance, and the expectations which we set from our little children. Thank you, sir, for the wonderful presentation. Thank you. It was indeed very, very inspiring, and I'm sure the parents would have got wonderful tips to handle the youngest age group. We are Thank you. able to receive the information about parenting style, and I'm sure that these tips will be very beneficial for all the parents. We are blessed to have an incredible mentor, our source of inspiration, Assistant Headmistress Ms. Pooja Shandelia. May I request you, ma'am, to kindly share your thoughts with all of us? Thank you so much, Tina. But I think after the enriching session by Dr. Salim Hirani and the way he has broken the myth regarding the role of parenting in nurturing the limitless potential within these youngest children is absolutely commendable. सर आज हमारे जितने भी पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं और मेरे कोलीग्स जो यहाँ हैं और मेरे साथ में मेरे अदर गेस्ट हुआ देयर विद अस, वो मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि आपने कितनी आसानी से हमें ये समझा दिया कि इन नन्हे बच्चों को संभालने के लिए किसी कला या किसी विद्या की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक हमें इनको संभालने के लिए अगर ज़रूरत है तो बस उन्हें सुनने की, समझने की और प्यार से सही दिशा दिखाने. In my years of service, I think, sir, I have realized this with time that love without discipline, जैसे आपने कहा, and discipline without love, both the situations cause more harm than good to the child. It's a proven fact, sir, that what happens is nurture and structure, they both play a very important role in raising up a child and for his holistic development. But nurture and structure both need to be balanced. If too much of structure is there without the cushion of nurturing, that can make a child more aggressive and rebellious, as you have already said. And too much of nurturing without structure makes the child over-sheltered and extremely self-centered. I also feel, sir, that there is another important aspect in the development of child, which we all need to understand. And you have also said that, and Sanjay sir also says time and again,
that every child is an individual, unique, and they cannot be compared to anyone. One size fits all. इससे गलत धारणा तो कुछ हो ही नहीं सकती है. And as shared by you, sir, in the presentation, comparison is the thief of childhood joy. It is because it steals from the child the sense of self-worth. The mindful tips shared by you, sir, will help all the parents who are listening to you in raising the most youngest age group of children with joy and care. Sir, we are really blessed that we could hear your valuable thoughts about parenthood with us today. I think most of the questions you have already answered in your presentation, but it's still some are left. As Sanjay sir has also said, we will be posting them to you and bother you again for that. I'm extremely grateful to Mr. Venu Gopal and Mr. Ramakrishna Mistry also from Allahabad who could join us with esteemed presence for this session today. I am thankful to Sunita ma'am and Kavita ma'am for joining us for this gracious presence. This parenting session was a much needed session, and my extremely gratitude to Principal Sir for his efforts for this session. As he has said, this is not the only session that we have, sir. There will be many more coming in the future. So, dear parents, this session would not have happened without your participation, especially during this pandemic. We understand the situation is not good, but a big thank you to you for joining and making this session a resounding success. We look forward to your valuable feedback. The class teachers will be sharing with you a link of Padlet wall. Please do share your valuable comments, anything that you want us to do further for you. We'll be most happy to do that for you. Thank you so much, everyone, for joining and making this day fruitful. Thank you. And Pooja, I would like to take the opportunity to join Dr. Salim in thanking Hasmukh Bhai and Venuji for making it possible for us and for our parents. And it's a wonderful association. We keep looking forward to it. I'm so thankful for their support. We always learn from them, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks to everybody. Thank you. We're just closing, sir. Just a minute. We'll just close. Yeah. Rightly said by Melody Beatty. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. With this, on behalf of pre-primary section, I wish to extend my heartfelt gratitude to our resource person, Dr. Salim Hirani, for his precious time and valuable thoughts. I thank you, our esteemed guests, Mr. Venugopal and Mr. Ramakrishna Mistry, for joining us today. I owe my special thanks to Principal Sir, AHM Ma'am, HM Middle School, Ms. Sunita Rajiv, HM Primary School, Ms. Kavita Shah, for their gracious presence. Thank you, dear parents. This session would not have been possible without your support and cooperation. Likewise, we will be waiting for your wonderful feedback. So the class teachers will be sharing a padded link with you all. Kindly add your comments as your valuable advice will help us in future. AHM Ma'am has already said that this is not the only session. We'll be having many more sessions in futures with the guidance of our mentors. In the end, I would like to share a quote by Matt Walsh. Parenting is the easiest thing in the world to have an opinion about, but the hardest thing in the world to do. On behalf of all my little Alconites, I wish to thank all the parents for their love and support you have given for guiding the children in learning and doing every possible thing, and to make them better human beings. Thank you so much, everyone, for your time and patience. It was a very, very fruitful session for all of us. Thank you so much. Thank you so much, sir. It was really a pleasure. Thank you, everyone. Have a great, wonderful day. Stay safe and take care. Thank you, sir. Thank you. Thank you, dear parents. Let me switch off light. Wonderful, Pooja. Very nice parenting session. So with your permission, may I end the live session? Sure, please. Thank you so much. Thank you so much. Sunita ma'am.